morning friends. On the way to निम्बिन. आज निम्बिन का फुल डे टूर है. बस मेरे होटल आई है, मुझे पिकअप किया है. ये बुकिंग मैंने अगोड़ा से किया है. हमारी बस अब निम्बिन पहुंच चुकी है. जिसको साइकिल राइड लेना है वो लोग साइकिल से यहाँ का विलेज एक्सप्लोर करेंगे. और जिसको नहीं जाना है वो लोग बस से आएंगे. These are the cycles used for cycling in this area. ये सारे माउंटेन्स दिख रहे हैं. ये लाइमस्टोन की माउंटेन्स है. These are the limestone mountains. और यहाँ का लोकल गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली प्रिजर्व कर रहा है. और इस एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है. मेरा बस ग्रुप साइकिल राइड के लिए तैयार है. मैं साइकिल नहीं चला रहा. I'll be traveling through bus. ये सारे लाइमस्टोन माउंटेन्स हैं. इनको बहुत सीरियसली प्रिजर्व किया गया है. कर रहे हैं क्या कि लोकल गवर्नमेंट छः किलोमीटर साइकिलिंग करना था. और मुझे रिसेंटली चिकनगुनिया हुआ था, इसलिए मैं साइकिल राइड नहीं ले रहा हूँ. यहाँ पे 3-3 किलोमीटर के ऐसे 2 स्लॉट्स हो गए. 2 स्पॉट्स पे साइकिलिंग होगी. यहाँ की साइकिल्स की भी कंडीशंस अच्छी नहीं थी. किसी के ब्रेक्स बहुत टाइट थे, किसी के लूज थे, सीट्स कंफर्टेबल नहीं था. तो मैंने सोचा बस से ही जाते हैं. अब हम हावलो पहुंच चुके हैं. आप देख सकते हैं ये लाइमस्टोन माउंटेन्स कितने सुंदर दिख रहे हैं. Very beautiful. छोटे छोटे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं. ये हमारा बस का ग्रुप है जो साइकिलिंग करके हावलो आया है. इन बच्चों को देख के मैं तो मेरा बचपन याद आ रहा है. हम भी ऐसे स्कूल में ट्रिप्स को जाते हैं. Let's come over here, everyone. So the area that we're standing over here, this is the Hoa Lu ancient capital city already. The very first capital city in the history of Vietnam, as I mentioned. Yes. So for visiting this place, as I said, we'll spend around 40 minutes over here. 40 minutes. So before I continue, as I said, because this is a historical site, so there will be quite a lot of information in terms of the history and the stories and everything. Yeah. So just in case you want to go with me for the information, please stay close to me and follow my flag over here.
all the architecture, all the buildings, everything. They are all from the 17th century, so around 500 years old already. So actually, the original buildings it was built in early 11th century, but because of the war, ये जो because of the कंस्ट्रक्शन time and बना गया है everything, ये the original 17th one was सेंचुरी में destroyed. बनाया गया And in है the 17th century, they rebuilt it. Yeah. So then we can go around over here first. More than 600, 700 kilometers. I think it's the better way to do it. Around those, we can go around object over here. So before. Or in English, they call it dragon bat over there. Yeah. So just like the name suggests, dragon bat, the bat for the king. Yeah. So this one, it was carved depending on the shape of the bat that the king used in the past. Everyone. Yeah. It was carved by the artist 500 years ago, also in early 17th century. And they donated the bat over here to this temple for worshiping the kings right here. However, this one specifically, this is not the real bat that the king used in the past. As I said, this one was carved depending on the shape of that one for worshiping purpose only. Because you can see, you can tell from the size over here, very small, right? And on the surface, we have a carving right here as well with the shape of the dragon. Of course, it's not comfortable sleeping on such a bed, I can say. Yeah, you will wake up in the morning having a tattoo of a dragon in the back. Yeah, not comfortable. So this one for worshiping purpose, everyone. And the reason why we use this one for worshiping purpose right here, that's because we have the image of the dragon right here. In the history of Vietnam, so in the culture. दिस इज ड्रैगन बेड। ये ऐसे ही इनका राजा ऐसे ही बेड पे सोता था, तो उनकी याद में ये ऐसा एक बेड बनाया गया है जिस पे ड्रैगन की कार्विंग है। ये जो मंदिर में हम जा रहे हैं ये इनके राजा का मंदिर है। राजा के साथ उसके 3 बेटों को भी पूजा जाता है। इसी राजा ने यहाँ पे उसकी राजधानी बनाई थी। See on the top, Yes. dragons. The dragon bat, dragons. This actually, that one is the dragon. The dragon bat right there. This is the palanquin for the festival time. ये पालकी का Palanquin, yeah, this one, yeah. So in the थ्रोन है। but now because we have no king, so this one for the festival. ये सिर्फ फेस्टिवल के टाइम The reason why there's so many यूज dragons होता है। around here, that's because, as I said, this is the place for worshiping the king, and the dragon represents the king of the dragon. It's now the festival time of Vietnam. The first 3 months of the lunar calendar, as you can see, they have all. दिस इज अनदर ड्रैगन बेड। ऐसे ही बेड पे Now you can इनका राजा सोता था, तो राजा की यादगार में ऐसे 2 बेड बनाए गए हैं। यहाँ पे पूरे वियतनाम में ऐसे 2 बेड के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। वियतनाम में कहीं पे भी आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बेड की नहीं मिलेंगे। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। इनके राजा के लिए इन्होंने मंदिर बनाया है और इस मंदिर में राजा के साथ उनके 3 बच्चों को भी पूजा जाता है। That is the statue of a king. And the side of the statue of his son. No. ये है इनके राजा का मंदिर का गाभारा। मंदिर से मैं बाहर आ चुका हूँ। इनके लिए इनका राजा, इनकी डायनेस्टी बहुत ही पूजनीय है। ये इनके पहले राजा थे, ली डायनेस्टी। ड्रैगन का बहुत ही बड़ा प्रभाव है इस पर। उस ज़माने में ड्रैगन का सिंबल सिर्फ राजा ही यूज़ कर सकते थे। ड्रैगन को ये लोग पावर समझते हैं और इनके देश के राजा सबसे
पावरफुल व्यक्ति थे, इसलिए वही सिर्फ ड्रैगन का सिंबल यूज़ करते थे। यहाँ पे पूरा मॉडल है, ये गंदा है हमारे बहुत गंदा है। हम लोग घूमे मार्केट सब घूमे एकदम मतलब शॉपिंग की? हाँ कुछ के चॉकलेट लिए, कुछ बिस्किट लिए, फ्रिज ब्लैंकेट में उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ मेरी मम्मी ने एक टोपी खरीदा। हाँ और स्ट्रीट मार्केट से हमने एक जूता खरीदा, जूते का दाम बहुत कम है यहाँ पे। ड्रॉप ले लिया फर्स्ट कॉपी, ओरिजिनल है कि कॉपी मालूम नहीं। कॉपी देखो, कोई भी जूता हेवी होता है ना वो कॉपी होता है। वो पता है अगर ठीक है, वो आयनर में 300 रुपये में मिल गया। वो अगर इंडिया में भी कॉपी 1000 रुपये। इंट्रोड्यूस यू, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज दीपन चक्रवर्ती फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम बंगाल। यस। इन्होंने मुझे पहचाना है, इन्होंने शायद मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। नाइस मीटिंग यू।